You all are fine, and I can see. Uh, okay. So Rahul, Jyoti, is this your first session? Hello, hello. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Okay. So we were discussing search engine marketing in the previous session. So we have discussed different match types, broad match types, phrase match type, and exact match type, right? What is broad match type? Can anyone tell me what is broad match type? Rahul, Shivam, anyone? No? You have to respond. Rahul, am I audible to you? Okay. So, uh, term will exact match with keyword. Um, no, broad match type. Huh, yes. Close variant. Yes. And in the reverse order will also match, right? Correct. Very good, Rahul. So, very nice. Yes. So that is broad match type, right? Now, I'm sharing PPT. One second. Now we'll see ad extensions. Any idea about ad extensions? What are ad extensions? Ad extensions क्या होते हैं? कोई idea? No? Okay, no problem. So I'm sharing PPT for that. Ad extensions basically, uh, if we want to add additional feature to our ad campaign, for that we add ad extensions to our ad campaign, right? So first we have site link extension. What is site link extension? It will allow you to display links to pages outside your ads landing page, right? Means our ad will only have one landing page, right? So if we want our visitors to visit other pages also on our website, what we will do, we will add site link extension to our ad campaign, so that we can add more landing pages to our website, to our ad campaign, right? So that people will visit these pages on our website directly through the ad campaign. ठीक है? साइटलिंक एक्सटेंशन कैसा दिखता है, मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ. स्क्रीन विजिबल है मेरी? Can you see my screen? No? um 1 second. um Now please check if it is visible now. Is it visible now? स्क्रीन विजिबल है अभी मेरा?
अभी भी विजिबल नहीं है क्या? Ma'am, it's visible. It's visible? Okay, Yeah. thank you. Okay, okay. So, if you can see in this example, this book roommate grace now, view roommate grace, check availability, ये सब क्या है? ये होटल बुकिंग का एक एड कैंपेन है जहां पर उनकी वेबसाइट पर ये जो दूसरे पेजेस अवेलेबल है उनको डायरेक्टली उन्होंने ऐड में यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है। जबकि मेन लैंडिंग पेज क्या है? booking.com, ठीक है। ये मेन वेबसाइट का लिंक है और बाकी जो ये लैंडिंग पेजेस आपको दिख रहे हैं ये वेबसाइट के अदर पेजेस है, राइट। सो सिंपल कैंपेन में क्या होता है? ओनली वन लैंडिंग पेज विल बी देयर, ओके। बट यदि हमें चाहिए कि हमारे ऐड पर जो विजिटर्स है वो डायरेक्टली हमारे ऐड से ये दूसरे पेजेस पर भी चले जाए हमारी वेबसाइट के, तो हम उन्हें साइट लिंक एक्सटेंशन के थ्रू यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है साइट लिंक एक्सटेंशन क्या होता है? नाउ नेक्स्ट इज call extension. Okay, so call extension, very well known कि with more and more people searching on smartphones, click to call saves user times, right? So that is why we can use call extension in our ad campaigns. It will let them contact you right from your ad campaign, right? So in this example, um, call extension is not available in this example. Let me give you another example. The call extension, I think. Hmm. Okay, so if you can see this image, here you will get the number along with the ad campaign. So if you will click on this number, directly you can place call to the business owner, right? या फिर जो भी marketer है, जो भी concerned person है, उसको आप directly call कर सकते हो, right? So this is call extension, right? Next feature we have is call out extension. What is call out extension? Any idea about call out extension? क्या फीचर होगा कॉल आउट एक्सटेंशन में? सुना है इसका नाम कभी किसी ने? नो? Okay, so call out extension is the USP of your business, right? For example, what unique services you provide, like free shipping or 24 hours customer services, or anything that is the USP of your business. What makes your business stand out of others, right? So that feature you have to add in the call out extension, ठीक है। दिस इज लाइक जब आप किसी पर्सन को पिच करते हो, ठीक है, किसी कस्टमर को, किसी यूजर को कन्वर्ट करने के लिए जो आप पिचिंग करते हो, सेल्स पिचिंग करते हो, तो वहां पर आप कुछ यूनिक सर्विसेज उसको प्रोवाइड करते हो, अपने बिजनेस के बारे में बताते हो, राइट। सो वो जो कॉल आउट एक्सटेंशन जो आपकी स्पेशलिटी बताते हैं, दूसरे लोगों से आप क्या अलग प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, वो हम कॉल आउट एक्सटेंशन में ऐड करते हैं, ठीक है। सो इस एग्जाम्पल में कॉल आउट एक्सटेंशन या कॉल आउट प्रमोशन, जिसको ये देखिए यहाँ पर फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स मोर देन $45, ठीक है, जहाँ पर प्राइसिंग मोर देन $45 का है वहां पर फ्री शिपिंग है, राइट। तो ये उनका यूएसपी है, क्लियर। इस तरीके से आप कॉल आउट या फिर प्रमोशन भी हम इसको बोल सकते हैं, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दिस we have um, one second. ओके, कॉल आउट एक्सटेंशन के बाद और कौन सा एक्सटेंशन है हमारे पास? लोकेशन एक्सटेंशन है। लोकेशन एक्सटेंशन में क्या मिलेगा आपको कि डायरेक्टली यू कैन सर्च फॉर द लोकेशन इफ यू वांट टू
visit that particular location or particular office. So what you can do, you can search on maps how to reach that location. ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कोई भी लोकेशन हमें पता करनी है, मैप्स पर पूरा गाइडेड आ जाता है पाथ. ठीक है, कितना टाइम लगेगा, कैसे कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हो, क्या क्या कन्वेंस अवेलेबल है. ठीक है, तो ये लोकेशन एक्सटेंशन आप ऐड कर सकते हो अपने ऐड में, ताकि कोई भी यूजर यदि विजिट करना चाहता है आपके लोकेशन को, तो वो डायरेक्टली मैप्स के थ्रू आपके ऑफिस को विजिट कर सकता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड स्निपेट. स्ट्रक्चर्ड स्निपेट क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड स्निपेट में क्या होता है कि आपके जो फीचर्स है, जैसे कि आप कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ जैसे कोर्सेस हो गए आपके पास. ठीक है, या फिर और क्या बोल सकते हो आप, कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की आपके पास सर्विसेज अवेलेबल है. ठीक है, तो या फिर कोई जैसे यहाँ पर ब्रांड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट, कि कौन से ब्रांड्स ये लोग यूज कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपने ऐड में. ठीक है, जिससे और ज्यादा इफेक्टिव लगता है आपका ऐड. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट इज अफिलिएट लोकेशन. अफिलिएट लोकेशंस क्या होते हैं? अफिलिएट लोकेशन मतलब होता है कि जैसे किसी विजिट कोई रिटेल जैसे कोई रिटेल सेलिंग करता है. ठीक है, तो रिटेल सेलिंग में क्या होगा कि वहां पर या फिर बहुत सारे अलग अलग लोकेशन पर आप प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हो. ठीक है, तो कौन से लोकेशन पर आपको वो प्रोडक्ट मिल सकता है, ठीक है, उसको बोलेंगे अफिलिएट लोकेशन. ठीक है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो अपने ऐड कैंपेन में. ठीक है, क्लियर है सारे टाइप के एक्सटेंशन सभी को? कोई डाउट किसी में भी? मैं डेफिनेशन से एक बार रिपीट कर देती हूँ, यदि किसी को कुछ डाउट है, किसी में भी कुछ रिपीट करना है, या सारा कुछ क्लियर है सभी को? ओके, डेफिनेशन रिपीट करनी है किसी की भी? डेफिनेशन रिपीट करनी है? ओके, डेफिनेशन मैं रिपीट कर देती हूँ. सो स्टार्टिंग से मैं कर देती हूँ एड एक्सटेंशन की सभी डेफिनेशन. फर्स्ट इज साइट लिंक एक्सटेंशन. ओके, सो साइट लिंक एक्सटेंशन मैं स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों को. Okay, site link extension is site links allows you to display links to pages outside your ads landing page, like links to your blog library, about us page, pages, etc. ठीक है, ये आई थिंक अवेलेबल थी, तो ये तो आप लोगों ने आई थिंक नोट डाउन कर सकते हो आप डायरेक्टली. इसके आगे का मैं कर देती हूँ. लोकेशन एक्सटेंशन का डेफिनेशन मैं रिपीट करती हूँ. Connect directly with your Google My Business location and display your address distance from the user's location to your address or mapped directions to your address. ठीक है, again I am repeating this. Location extension, connect directly with your Google My Business location and display your address, comma, distance from user's location to your address और mapped direction to your address. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड स्निपेट. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट का डेफिनेशन बोल रही हूँ मैं अभी. Google provides 13 header options like amenities, brands, and courses that highlights specific aspects of your products or services, which you are able to follow with a short list of custom values you choose. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आप
आप यदि आपका कोई ब्रांड है या फिर कोई कोर्सेस है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आप लिस्ट कर सकते हैं, एक लिस्ट के फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट कर सकते हो अपने एड कैंपेन में। ठीक है, मैं डेफिनेशन दोबारा से रिपीट करती हूँ। Google provides 13 header options like amenities, brands, and courses that highlight specific aspects of your products or services, which you are able to follow with a short list of custom values you choose. ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज प्राइस एक्सटेंशन। ठीक है, प्राइस एक्सटेंशन वेरी क्लियर कि हम अपने प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो डायरेक्टली एड कैंपेन में ही शो कर सकते हैं, ताकि विजिटर्स जो है डायरेक्टली प्रोडक्ट पर क्लिक करें, उन्हें प्राइस पता चल जाए, यदि परचेस करना है तो वहीं से वो परचेस कर लेंगे। ठीक है, सो लिख लीजिए प्राइस एक्सटेंशन। शोकेस योर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड प्राइसिंग within your ad. By clicking on these extensions, your customers are taken directly to their products or services. ठीक है, I'm repeating once again. Price extension: showcase your specific products and pricing within your ad. By clicking on these extensions, your customers are taken directly to the products or service. ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? नेक्स्ट इज मैसेज एक्सटेंशन। ओके, मैसेज एक्सटेंशन में लिखिएगा अलाउज यूजर्स टू मैसेज यू डायरेक्टली फ्रॉम योर एड। ठीक है, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, अंडरस्टूड है ये। प्रमोशन एक्सटेंशन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट इज अफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन। सो अफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन का डेफिनेशन लिख लीजिए, डिजाइन फॉर दोज designed for those who sell their products through retail chains these extensions help users find nearby stores that sell those products ठीक है, I'm repeating it once again. Affiliate location extension designed for those who sell their products through retail chains. These extensions help users find nearby stores that sell those products. ठीक है, जो कि जो लोग रिटेल चेन्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं या सेल आउट करते हैं, तो यदि विजिटर को पता करना है कि मेरी लोकेशन पर ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन के थ्रू वो उसको पता चल जाएगा। ठीक है, कि कौन से मतलब नियर बाय लोकेशन कौन सी है या नियर बाय स्टोर कौन सा है जहां पर उसको ये प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऐप एक्सटेंशन। ओके, सो ऐप एक्सटेंशन इज बेसिकली फॉर एडवर्टाइजिंग द ऐप so that we can enhance the downloads of our app. ठीक है, इतना तक सभी को क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? सारे डेफिनेशंस क्लियर हैं, सारे एक्सटेंशंस क्लियर हैं आप सभी को? कुछ पूछना है इतने में किसी को भी? नो? ओके, सो आफ्टर दिस we have next keywords, negative keywords. Okay, so what are negative keywords? जैसे नॉर्मल कीवर्ड्स होते हैं वैसे ही नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं, बट मेन डिफरेंस ये है
कि जो नॉर्मल कीवर्ड्स होते हैं, टारगेटेड कीवर्ड्स जो जिन्हें हम बोलते हैं, सो on targeted keywords we want to show our ad to our visitors, right? But on negative keywords we don't want to show our ads. ठीक है, मीन्स ऐसे वर्ड्स जिन पर हम नहीं चाहते कि हमारा एड शो हो, ठीक है। कुछ बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं इसके लिए। कुछ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जैसे कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। यदि ये कोई सर्च कर रहा है, ये सर्च टर्म में है, डिपेंड करेगा कि सर्च टर्म क्या है या हमारे एड कैंपेन किस बारे में है, ठीक है। बट मोस्टली ये जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं वो वो कस्टमर में कन्वर्ट नहीं होते हैं मोस्टली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है तो वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, ठीक है, डिटेल्स जानना चाहता है। वो हमारा कोर्स परचेस करने के लिए नहीं आया है, राइट? सो it does not applies to every type of search query, but in most of the cases ये जो 5 Ws होते हैं ये मोस्टली इंफॉर्मेशनल सर्चेस को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो अगेन इट विल डिपेंड ऑन द type of campaign and type of keywords only, but these are the negative keywords, right? So you can add negative keywords to your ad campaign, okay, so that you will not waste your budget on these negative keywords, okay? So definition is in front of you. Negative keywords work exactly the same as regular keywords, but instead of choosing search terms you want your ads to show up for, you are choosing the terms you don't want your ads to show up for, right? So here are some negative keywords commonly used: free, cheap, or the competitor's name. Okay, some companies they intentionally add competitor's name to their targeted keywords. Okay, but this is not the case with everybody. Some people they add competitors name in negative keywords because they don't want to show up their ad on competitors names. ओके, क्लियर है सभी को नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं? कोई डाउट उसमें किसी को भी? ओके, सो आफ्टर नेगेटिव कीवर्ड्स लेट्स अंडरस्टैंड द गूगल एड्स ऑप्शन। गूगल एड्स ऑप्शन के बारे में किसी को कोई आइडिया है क्या होता है गूगल एड्स ऑप्शन? Anyone? Any idea about Google Ads auction? No? Ayushi, Shweta, Rahul, any idea about Google Ads auction? Saurabh? No? Okay. Okay. No problem. So, one second. Again, I'm sharing the screen. Is my screen visible? Screen visible है मेरी? No? Yes, okay. So, Google Ads auction is basically like if
multiple advertisers are bidding on same keyword. Okay, या फिर bidding को भी रहने देते हैं. If multiple marketers want to run ad campaign on same keyword, okay, so what will happen, how Google will rank their ad campaigns, on what basis? Okay, so for this the marketers put bidding for a particular keyword. ठीक है, और जिसकी बिडिंग ज्यादा होगी, और सिर्फ बिडिंग पर डिपेंड नहीं करता है, other factors are also included in this ranking. Quality score is also included. Okay, so quality score क्या होता है? Quality score is quality score you get from Google only, and it depends on landing page user experience. Okay, जो आपके एड का लैंडिंग पेज आपने डिसाइड किया है, वहां पर यूजर एक्सपीरियंस कैसा है. ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस मतलब जब विजिटर्स आपके लैंडिंग पेज पर विजिट करते हैं, तो वो उनका उनका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका पेज प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, रेलेवेंट है या नहीं, वहां पर प्रॉपर नेविगेशन है या नहीं. ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करती है या डिक्रीज करती है. ठीक है, तो उसके बेसिस पर आपको क्वालिटी स्कोर मिलता है. ठीक है, so let's take an example, and on the basis of that we'll understand what is ad auction basically. Okay, so we have 4 advertisers here, advertiser 1, 2, 3 and 4, and let's say their maximum bidding is 2, 4, 6 and 8. Okay, now Google has given quality score. Who is Jyoti? Please mute yourself. Sure. Ma'am, can you please mute Jyoti? So, what is the ad rank formula for calculating ad rank? We have bidding into quality score. Okay, so for advertiser 1, ad rank will be 2 into 10, that is 20. Here 4 into 4, 16. 6 into 2, 12, and 8 into 1, 8. Means the quality score of advertiser 1 is 10. That means इसका जो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, राइट. सेकेंड एडवर्टाइजर का लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस थोड़ा कम अच्छा है, इसलिए उसको 4 स्कोर मिला है. एडवर्टाइजर 3 का और कम है, तो 4 स्कोर मिला है. एंड एडवर्टाइजर 4 ने बिडिंग मैक्सिमम की है, सबसे ज्यादा पैसा लगाया है इसने एड पर. स्टिल जो उसका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है वो बहुत खराब है. ठीक है, इसलिए उसको क्वालिटी स्कोर कितना मिला है? ओनली 1. ठीक है, तो आप जो बिडिंग लगाते हो सिर्फ उस पर सारी चीजें डिपेंड नहीं करते. यदि आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फर्स्ट रैंकिंग मिल जाएगी, राइट. Mandira ma'am, are you there? Yes, ma'am. Ma'am, please can you mute this Jyoti? Yeah, I did. I'm not able. Yeah, thank you. Yeah. Okay, so this is the means the quality score is very important factor. ठीक है, for ranking your ad on search engine result page, right. So इसके basis पे क्या हो रहा है, even if the advertiser 4 has put maximum bidding but the quality score is 1, that is why उसको सबसे last position मिल रही है, 4th position, क्योंकि उसका जो क्वालिटी स्कोर है वो 1 है. इसकी वजह से एड रैंकिंग पर इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो सबसे कम जो एड रैंकिंग है वो एडवर्टाइजर 4 को मिल रहा है, राइट.
सो इसके बेसिस पर रैंकिंग डिसाइड होती है कि यदि 4 एडवर्टाइजर ने सेम कीवर्ड पर बिडिंग किया है तो किसको कौन सा पोजीशन मिलेगा, ठीक है। ये आपके क्वालिटी स्कोर और बिडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ यदि आपने बिडिंग बेसिकली क्या हुआ कि आपको मतलब एक क्लिक आ रहा है, यदि ठीक है एक क्लिक या फिर एक कन्वर्जन हम मान लेते हैं, आपके एड पर यदि एक कन्वर्जन आ रहा है तो उस एक कन्वर्जन के लिए आप कितना अमाउंट पे करेंगे, दैट इज नोन एज बिडिंग, ठीक है। क्लियर है? जब आपके पास एक कन्वर्जन आ रहा है, उस एक कन्वर्जन के लिए आप क्या अमाउंट पे कर रहे हैं, दैट इज नोन एज बिडिंग या फिर कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। तो अब क्या ये जरूरी है कि यदि एडवर्टाइजर 1 ने 2 रुपीज डिसाइड किया है तो उसको 2 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे? ऐसा नहीं है, आपने अपनी तरफ से डिसाइड कर दी है बिडिंग, बट उसके बाद भी ये जो कैलकुलेशन है इसके बेसिस पर आपका जो अमाउंट है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा कम भी नहीं होता, ज्यादा इंक्रीज भी नहीं होता, ठीक है। मतलब यदि 2 रुपीज डिसाइड किया है तो वो 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 के आसपास भी कम हो सकता है, और 2.5, 2.6, 2.7 मतलब 2 से 3 के बीच में और 1 से 2 के बीच में ही वो वैरी करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग सीपीसी, दैट इज एड रैंक ऑफ पर्सन बिलो यू डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01, ठीक है। सो यदि एडवर्टाइजर 1 का हम कॉस्ट पर क्लिक डिसाइड करें और कैलकुलेट करें, उसने क्या डिसाइड किया हुआ है, 2 रुपीज, ठीक है। अभी एड रैंक ऑफ पर्सन बिलो यू, सो एडवर्टाइजर 2 का एड रैंक क्या है, 16, तो हमने यहाँ पर 16 लिख दिया, डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर, एडवर्टाइजर 1 का क्वालिटी स्कोर क्या है 10, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.01, ठीक है। तो 16 डिवाइडेड बाय 10 1.6, ठीक है। 1.6 को हमने प्लस कर दिया 0.01 से, आंसर आ गया 1.61, ठीक है। मतलब कि उसने 2 रुपीज डिसाइड किया था बिडिंग, स्टिल उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 1.61। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे एडवर्टाइजर से, उनका क्वालिटी स्कोर और उनकी बिडिंग क्या है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा, राइट। तो और कभी ये ज्यादा भी हो सकता है, कभी ये कम भी हो सकता है, बट जो आपने प्राइस डिसाइड किया है उसके अराउंड ही ये वैल्यू होगी, ठीक है। क्लियर हुआ गूगल एड ऑप्शन सभी को? कोई डाउट है? इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है, ये आगे समझने के लिए आपको इजी रहेगा। किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, एड ऑप्शन से रिलेटेड? सभी को क्लियर है? ओके, गुड। सो नाउ next we will understand Google Ads account structure. Shall I stop sharing the screen? स्क्रीनशॉट ले लिया है आप लोगों ने या नोट डाउन कर लिया है इसको? Okay, so I am stopping this. Just give me a second. Now, how is the Google Ads account structure? स्क्रीन विजिबल है मेरी आप सभी को? दिख रही है स्क्रीन मेरी? यस मैम। ओके ओके। सो गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो हमारे पास एक अकाउंट होता है गूगल एड्स अकाउंट, ठीक है। उस एक अकाउंट में हम मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 कैंपेन्स का एग्जांपल लिया है, हम मल्टीपल कैंपेन्स यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। और एक कैंपेन के अंदर
मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। इफ यू कैन सी हियर, कैंपेन 1 के अंदर आपको दिख रहा है ये एड ग्रुप 1A एंड एड ग्रुप 1B, सेम इन द कैंपेन 2, ठीक है। तो मल्टीपल एड ग्रुप्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो एक पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर। और इस एड ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं और एड्स होते हैं, ठीक है। अगेन मल्टीपल कीवर्ड्स एंड मल्टीपल एड्स हम ऐड कर सकते हैं इस एक एड ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे 2 बिजनेस हैं, ठीक है। मैं एक ही अकाउंट हैंडल कर रही हूँ, और या फिर 2 स्ट्रीम्स है मेरे एड कैंपेन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई इंस्टीट्यूट है और मैं 2 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। या फिर 2 स्ट्रीम्स है, एक साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, ठीक है। तो कैंपेन 1 में मैं साइंस स्ट्रीम के लिए एड कैंपेन्स रन कर रही हूँ, और कैंपेन 2 के लिए कैंपेन 2 में मैं कॉमर्स स्ट्रीम के लिए कैंपेन्स रन कर रही हूँ, ठीक है। अभी कैंपेन 1 में अब साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड अलग अलग एड्स हो सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज हो सकते हैं। लाइक एक बीएससी के लिए हो गया, एक एमएससी के लिए हो गया, राइट। सो एड ग्रुप 1 हम बीएससी के लिए रख लेते हैं, एड ग्रुप 2 हम एड ग्रुप 1 भी हम रख लेते हैं एमएससी के लिए, ठीक है। अब जब भी मुझे बीएससी के स्टूडेंट्स को टारगेट करना होगा, तो मैं क्या करूंगी, एड ग्रुप 1A में अपना एड बनाऊंगी, ठीक है। और इसमें कीवर्ड्स किससे रिलेटेड होंगे, सिर्फ बीएससी से रिलेटेड ही इसमें कीवर्ड्स होंगे। और यहाँ पर यदि मैं एड ग्रुप 1B में एड बनाऊंगी, तो वो एमएससी से रिलेटेड होगा, और इसमें कीवर्ड्स भी एमएससी से ही रिलेटेड होंगे। सेम केस अप्लाइज विद कैंपेन 2 ऑल्सो, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है, या फिर मल्टीपल कोर्सेज में या मल्टीपल चीजों में हम डील कर रहे हैं, तो हम उसके लिए अलग अलग टाइप के कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग एड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, और उन्हें अलग अलग कीवर्ड्स के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या होता है? कोई Yes, डाउट ma'am. तो ओके गुड। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक प्रैक्टिकल। अच्छा, प्रैक्टिकल के लिए तो अभी है 15 मिनट तो है, तो मैं एक प्रैक्टिकल आप लोगों को बता देती हूँ। सर्च एड का हम एक छोटा सा कैंपेन रन कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी उसका प्रैक्टिस कीजिएगा नेक्स्ट सेशन तक, और जो दूसरे एड कैंपेन्स अवेलेबल है उसको भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सो Okay. जस्ट गिव मी सेकेंड। गूगल एड्स पर आपको जाना है, ठीक है। गूगल एड्स प्लेटफॉर्म ये हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, जब कीवर्ड प्लानर हम लोगों ने यूज किया था, राइट। सो जस्ट साइन इन विथ योर जीमेल आईडी, ओके। एंड गूगल एड्स अकाउंट ये स्टार्टिंग में बनाया था श्वेता। यदि आपका नहीं बना है, बनाने में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपने जीमेल आईडी से उसमें लॉग इन करना है, ठीक है। यदि किसी को लॉग इन करने में प्रॉब्लम आती है, जस्ट लेट मी नो, आई विल गाइड यू, ओके। आफ्टर द सेशन जस्ट पिंग मी ऑन द व्हाट्सएप, आई विल गाइड यू हाउ टू प्रोसेस, ओके। हाँ, पे करना पड़ता है इसमें, पर अभी हम सिर्फ सीखने के लिए इसको क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी रियल प्रोजेक्ट के लिए वर्क करते हो, तो वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो। अभी पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम एड कैसे बनाते हैं, उसको कैसे पब्लिश करते हैं, ये देखेंगे। जब तक आप पे नहीं करोगे, तब तक जो आपका एड है वो एक्टिव नहीं होगा, रन नहीं होगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ हमको बनाना सीखना है, ठीक है। पेमेंट इज द लास्ट प्रोसेस, ओके।
सो गूगल एड्स अकाउंट पर जाना है आपको, अपने जीमेल आईडी से लॉग इन करना है। ये हम लोग स्टार्टिंग में कर चुके हैं जब हमने कीवर्ड प्लानर किया था। स्टिल यदि किसी को नहीं कोई डैशबोर्ड में एंटर कर पा रहा है या प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन टेल मी। Okay, so this is the dashboard of Google Ads. Okay, uh, 1 second. For creating the campaign, click on this plus button, go to campaign. हम लोग काफी सारी टर्म्स कवर कर चुके हैं, बट काफी सारी टर्म्स, तो एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैंपेन रन करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्टिव फॉर योर एड कैंपेन। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव है क्या है, आप क्या अकॉम्प्लिश करना चाहते हो एड के थ्रू। ओके, फर्स्ट इज सेल्स। सो इफ यू वांट टू ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, ठीक है, या फिर कोई ऐप है आपका, वहां पर आप सेल्स जनरेट करना चाहते हो, मतलब कोई आपने आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज उसमें आपने सेल्स किया हुआ है, ठीक है, कुछ ऑफर आप प्रोवाइड कर रहे हो और वहां पर आप चाहते हो कि आपके सेल जनरेट हो, उसके लिए आप ये सेल्स वाला सेलेक्ट करोगे गोल। ठीक है, नेक्स्ट इज लीड्स। ठीक है, तो यदि आप लीड फॉर्म्स के थ्रू कोई लीड जनरेट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये लीड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। इफ यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट, so you will select this website traffic option। यदि आपका कोई ऐप है और आप चाहते हो कि पीपल शुड इंस्टॉल दिस ऐप और दे शुड एंगेज विथ योर ऐप, तो आप ये ऐप प्रमोशन वाला गोल सेलेक्ट करोगे। if you are a new brand and you want to create awareness about your brand, so you will select awareness and consideration। ठीक है, यदि आपका कोई लोकल स्टोर है and if you want people to visit your local store, so you can select this one। और यदि आपको नहीं पता है कि क्या गोल सिलेक्ट करना है, तो आप विदाउट गोल के भी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए हम वेबसाइट ट्रैफिक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको कन्वर्जन गोल सिलेक्ट करना है कि वेबसाइट पर आने के बाद आप क्या चाहते हो, विजिटर्स क्या करें। ठीक है, पेज व्यू करे या कोई पीडीएफ है उसको डाउनलोड करना है या कॉन्टैक्ट करना है आपको। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं, कंटिन्यू। नाउ किस टाइप का एड कैंपेन आपको रन करना है, तो हमने ये सभी टाइप के कैंपेन्स पढ़े थे लास्ट सेशन में। सर्च कैंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन, वीडियो कैंपेन एंड डिमांड जेन। ओके, सो अभी हम सर्च कैंपेन ट्राई करेंगे। बाकी सारे टाइप्स के भी एड्स आपको बनाने हैं, रन करने हैं। जहां पर प्रॉब्लम आती है जस्ट टेल मी, तो हम लोग सारे टाइप के कैंपेन एक बार रन करके देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। तो यहाँ पर हम स्टू इंटर्न वेबसाइट ले लेते हैं। ठीक है, कैंपेन नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। क्लिक ऑन कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, मतलब आपका जो गोल है वो क्या है। आप ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स चाहते हो अपने कैंपेन पर, या फिर कन्वर्जन्स चाहते हो, ठीक है, या इम्प्रेशन शेयर। अब ये सारी चीजें क्या है, ये ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी के लिए हम क्लिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि हमें अपने एड पर क्लिक्स चाहिए। ठीक है, अब एक क्लिक पर आप कितना अमाउंट पे करना चाहते हो वो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। सो
लेट्स से विल पे 2 रुपीज फॉर 1 क्लिक, ठीक है, इससे ज्यादा पे मुझे नहीं करना है, ठीक है। सो ये भी कैसे डिसाइड करते हैं, इफ यू रिमेम्बर हमने कीवर्ड प्लानर में जब कीवर्ड रिसर्च की थी, सो इन दैट कीवर्ड रिसर्च वी हैव द टॉप ऑफ द पेज बिड लिमिट, वो हमारे पास अवेलेबल था, ठीक है। वहां से आप हर कीवर्ड के लिए आइडिया ले सकते हो, जो भी कीवर्ड आप सेलेक्ट कर रहे हो अपने एड कैंपेन के लिए, कि टॉप ऑफ द पेज बिड क्या चल रहा है अभी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपना बिड लिमिट सेट कर सकते हो यहाँ पर, ओके। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क दोनों में हमको यदि ऐड रन करना है तो हम दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए इंडिया सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं, या फिर हमें पूरा इंडिया सेलेक्ट करना है और किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को हमको नहीं दिखाना ये ऐड, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इंडिया टारगेट कर लेंगे, कि इंडिया कंट्री दिख रहा है, इंडिया कंट्री के आगे हमने टारगेट पर क्लिक कर दिया, और इंडिया में से मुंबई में मुझे ये ऐड नहीं दिखानी है, ठीक है। तो मुंबई महाराष्ट्र को मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर दूंगी, ठीक है। तो मुंबई सिटी में मैं ऐड नहीं दिखाना चाहती, तो मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया और पूरे इंडिया को मैंने टारगेट कर लिया, ठीक है। आप मल्टीपल लोकेशंस टारगेट कर सकते हो और मल्टीपल लोकेशन एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेजेस यू हैव टू सिलेक्ट हियर, इंग्लिश बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, और कोई लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, मान लीजिए मैं हिंदी ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, गुजराती, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर ऐड हो जाएगी। नाउ ऑडियंस सेगमेंट, तो यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर ये डिफाइन करना है कि आपकी जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या है, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग सर्विसेज में इंटरेस्ट हो सकता है, और बिजनेस एजुकेशन या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन, बेसिकली यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं। वन सेकेंड, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ओपन तो नहीं, बस इतना ही यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो कैटेगरी आपको मिल जाती है वो आप सेलेक्ट कर लो, जो नहीं मिल रही है सोशल मीडिया मीडिया एंथुसियास्ट आल्सो विल अप्लाई, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको ढूंढते जाना है कौन कौन सा अप्लाई हो रहा है आपके बिजनेस के लिए, वो आपको सिलेक्ट करना है। अब हु दे आर, यदि और डिटेल्ड आपको टारगेटिंग करनी है तो आप हु दे आर, व्हाट आर देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, उसके बेसिस पर भी टारगेट कर सकते हो अपने ऑडियंस को। लाइक डिटेल डेमोग्राफिक्स में यदि जाएं तो पेरेंटल स्टेटस है, एजुकेशन है, इनके बेसिस पर भी आप जो है टारगेट कर सकते हो। तो मेरे केस में ये अप्लाई नहीं होगा। मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट, यदि आपका कोई ऐसा बिजनेस है या ऐसा सर्विस प्रोडक्ट है जहां पर ये अप्लाई होते हैं तो आप यहाँ से भी टारगेटिंग कर सकते हो। व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, यदि ये आपको पता है कि वो उनका इंटरेस्ट किस में होगा, जैसे मेरे इस केस में मुझे पता है कि मार्केटिंग में उनका इंटरेस्ट होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगी, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी, तो ठीक है, इसको हम बैक कर देते हैं। व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग फॉर, यहाँ से देखते हैं यदि कुछ अप्लाई होता है तो। एम्प्लॉयमेंट के लिए दे कैन सर्च,
तो ये वाला हो सकता है। एजुकेशन या फिर एग्जैक्टली इंटर्नशिप्स के लिए हो सकता है, राइट। सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब्स, ठीक है। तो जो जो अप्लाई हो सकता है वो आप इधर से अप्लाई सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। तो ये हमारा फर्स्ट कैंपेन है, इसलिए हमारे पास पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है, या फिर हम हमारी वेबसाइट से या हमारे बिजनेस से पहले उन्होंने यदि इंटरेक्ट किया है तो हम उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट हो गया ऑडियंस। क्लिक ऑन मोर सेटिंग्स। नाउ ऐड रोटेशन ऑप्शन, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ऐड रोटेशन ऑप्शन क्या होता है। इसमें ऑप्टिमाइज एंड डू नॉट ऑप्टिमाइज है, अभी के लिए हम ऑप्टिमाइज सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है ये मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट सेशन में बताती हूँ। यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड एंड डेट हमको सेलेक्ट करना है। सो स्टार्ट डेट 21 जून सिलेक्टेड है, यहाँ पर हम 27 सेलेक्ट कर लेते हैं। एड स्केड्यूल, कौन से दिन आपको चलाना है, तो ऑल डे रख लेते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन से दिन चलाना है, मैंने ऑल डे रखा हुआ है। ये 24 आवर्स क्लॉक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो कितने कितने टाइम, कहाँ कब से कब तक आपको ऐड चलानी है, वो आप यहाँ से, यदि और ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। कैंपेन यूआरएल अभी नहीं करना है। नो ब्रांड लिस्ट अप्लाई, ब्रांड रिस्ट्रिक्शन इसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये फाइनल यूआरएल हो गया आपकी वेबसाइट का। व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट्स और सर्विस यूनिक, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने क्योंकि यहाँ पर वेबसाइट अप्लाई की हुई है इसलिए डायरेक्टली ये आ गया है, इसको अभी के लिए स्किप करते हैं। नाउ यू हैव टू एंटर कीवर्ड्स फॉर ये ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ है, ठीक है। कीवर्ड्स, यदि आपने कीवर्ड रिसर्च की हुई है, आपके पास कीवर्ड्स है जिस पर आपको ऐड चलाने, तो आप वहाँ पर कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ब्रॉड मैच टाइप, फ्रेज मैच टाइप, एग्जैक्ट मैच टाइप सारा दिया हुआ है, राइट। तो आप उस हिसाब से अपना कीवर्ड्स डिसाइड कर सकते हो। नाउ दिस इज द फाइनल एड क्रिएशन, और आपका एड कैसा दिखेगा ये यहाँ पर एक प्रीव्यू आ रहा है, राइट। तो हमने इस फाइनल यूआरएल में आपको अपने वेबसाइट का लिंक देना है विद HTTPS, ठीक है, या HTTP जैसे भी है, जो भी आपका पोर्टल है। यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी कुछ आइडियाज दिए हुए हैं, ठीक है। यदि ये अप्लाई होते हैं, आपको सही लगते हैं, तो आप ये रख सकते हो। अदरवाइज जो भी आप ऑफर करना है आपको अपने एड में, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कैरेक्टर लिमिट्स है 30 कैरेक्टर्स की, तो आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। 3 हेडलाइंस जो है वो कंपलसरी है, उसके बाद आपकी मर्जी है, यदि आपको और ऐड करना है तो आप और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है, ये भी इन्होंने सजेस्ट किया हुआ है। यदि आपको ये नहीं सही लगते हैं, आप इसको रिमूव करके अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन विल बी कि आप अपने एड में क्या ऑफर कर रहे हो, ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। कुछ कैची लाइंस आपको ऐड करनी है ताकि जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो, आपके ऐड को क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर 90 कैरेक्टर्स की लिमिट है। अगेन आपको 2 डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखना जरूरी है, उसके बाद आपकी मर्जी यदि और ऐड करने हैं तो, ठीक है। यहाँ पर साइट लिंक्स यदि आपको ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हो, और जो भी ऐड एक्सटेंशन हमने पढ़े थे वो सब यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको डन एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से हम बजट डिसाइड करेंगे अपने एड कैंपेन के लिए। सो अभी के लिए मैं, ओके 1 सेकेंड, वी नीड टू कंफर्म आइडेंटिटी। ओके, सो अभी के लिए मैं ये जो रिकमेंडेड है वही सिलेक्ट कर रही हूँ बजट। आप गेट कस्टम सेट कस्टम बजट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये आपका एड पूरा रेडी है। आप चेक एरर्स यदि कोई होगी तो वो यहाँ पर चेक कर लेगा, अदरवाइज यू कैन पब्लिश योर एड, ठीक है। अभी टाइम कम था इसलिए आपको बस एक बार क्विक रिव्यू दिया है एड कैंपेन का। बेसिक
एड कैंपेन का, ठीक है। बाकी इसको डिटेल्स में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। जो भी टर्म्स बीच में आए थे जो हम अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। कुछ पूछना है तो सर गूगल आईडी से ओपन नहीं हो रहा है, बिजनेस डिटेल्स मांग रहा है। हाँ, बिजनेस डिटेल्स तो आपको डालनी पड़ेगी। बिजनेस डिटेल्स मतलब कि आपको अपना वेबसाइट का नाम वहां पर डालना पड़ेगा, ठीक है। और यदि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार बाद में, क्लास ओवर होने के बाद, ठीक है श्वेता। ओके, और कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है? अभी जो हमने ये क्विक कैंपेन, ये देखो कोई भी एरर नहीं है अभी, ये को बता देता। इसके बाद बस हमको पब्लिश कैंपेन करना है। पब्लिश कैंपेन करने के बाद अभी मैंने कोई बजट इसमें ऐड किया हुआ नहीं है, ठीक है। स्टिल ये पब्लिश हो सकता है। पब्लिश होने के बाद ये रिव्यू में जाएगा, गूगल इसको रिव्यू करेगा ऐड को कि कोई पॉलिसी वायलेशन तो नहीं हो रहा है ऐड में। इसमें 1 या 2 दिन लग सकता है। उसके बाद यहाँ पर अभी अंडर रिव्यू आ रहा है, बाद में यहाँ पर एक्टिव लिख कर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर इम्प्रेशंस और क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? सो ठीक है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए और दूसरे एड कैंपेन्स भी ट्राई कीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे नेक्स्ट सेशन में पूछिए, ओके। ठीक है, लेट्स वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।